RG next one says, my divorce story. Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I've been a fan of your work. This is my third email to you through, though you probably won't remember since the previous ones were from an old email account that I've now lost access to. Note to everyone reading this, always have a backup email registered to your Gmail, and trust me on this one, of course. I'm currently going through a divorce. I moved to the UK from Lahore in 2017 for studies, and today I'm working with the NHS. I've built a good life here, mashallah. A few months ago, I watched an influencer's Karbala on foot journey, and I was deeply inspired. I'm pretty fit. I'm a pretty fit woman. I run several marathons every year, and the idea of embarking on a spiritual physical journey like that struck a chord with me. I decided I'd like to trek in late 2025, but I wanted to prepare for it properly. So I set my sights on the Camino de Santiago walk as a practice run. Nice. When I shared this with my husband, it went downhill. A bit of context first. We had an arranged marriage about 8 months ago, set up by a Rishta auntie from Lahore. He was born and raised in England and is a British Kashmiri Pakistani. No surprises. While I moved here on my own, there were red flags from day one. But my mother was adamant that I needed to get married because at 29 I was already practically a waste. So I went through with it, thinking maybe things would improve with time. Honestly, I just wanted my mother off my back, and the biggest pro was at least this was a husband in the UK and I wasn't being forced to come back to Pakistan. My husband is a very religious, and that's fine, but our views on religion are vastly different. On our very first date, I told him that I wear modest Western clothes and I don't wear a hijab, and that this was something I won't change. He agreed, but in reality, he never accepted it. Every day, I would come home to him blasting videos of English bolne wale right-wing religious scholars at full volume, bashing engineer Mirza Sayyid Muzammil and anyone even slightly secular. Even when I see my name is not there, that's how I prefer to live. कि I just don't want to be seen. I'm glad. इसलिए don't subscribe to my channel. Even when I had a tight night shift as an NHS employee and came back exhausted, there was no peace. I'd ask him to lower the volume, but he won't listen. Get him an earbuds or something. The only time I'd get to listen to anything of my choice was podcasts on Spotify while showering, and even that turned out to be a problem. He told me that the angels were cursing me for it. Imagine being scolded for a harmless habit like that. It was ridiculous. Now, this is something from a religious point of view. My mom also used to scold me जब मैं नहाते हुए बातें करता था. Like, I'm talking to someone outside. Like, घर के अंदर ही, like, my brother is bothering me, या ऊपर से कुछ फेंक रहा है. वो एक रोशनदान था ऊपर, पुराना घर का. तो my mom used to scold us कि बाथरूम से बात नहीं किया करो, because when you enter and you take off your clothes, that's when the angels decide to step out, और वो बाहर ही रहते. So when you talk, they assume कि oh, now this person is ready, and when they come back and they see you that way, so they shame you. So I mean, now this is like from a religious standpoint. I don't even know if it's religious or cultural. This is what my mom used to say, और यही बात यहाँ भी कही गई है. So please इसमें ज़रा guide कीजिएगा. One of the most hurtful incidents was when he found out about my best friend who is a queer Muslim. He saw an old picture of her and me with the pride flag and asked me about it. My friend was wearing this flag. I answered truthfully that it's because my friend is gay. I only said this as she is out and proud. He surprised me by saying he wanted to invite her for dinner. I was genuinely pleased. अच्छा वो तबलीग के लिए बुलाना होगा. I was genuinely pleased and thinking maybe he was trying to be understanding, but no. He humiliated both of us by telling her straight to her face that she was going to burn in hell. It was beyond humiliating. I felt ashamed for even putting my friend in that position. The final straw came when I told him about my Camino Francis plans. If I'm pronouncing it right. He Googled it and immediately told me it was un-Islamic. When I explained it was a preparation for my Karbala walk, he flipped out. He said he would tear my passport if I even thought about going. That was it for me. It was that moment I realized I couldn't keep sacrificing my peace for someone who doesn't respect my choices. So I moved out.
and I've already filed for divorce. My mother has stopped speaking to me. She thinks I've made the biggest mistake of my life. But honestly, I don't care anymore. I had to protect my peace. I had to choose myself. Thank you for reading this. Even if it never gets shared, just writing out has been good for me. And for anyone else reading this and feeling trapped in a situation where their peace is being compromised, choose yourself. It's hard, but it's worth it. Best जेन डो, जो कि ऑब्वियसली अब फेक नेम, जॉन डो था ना उसका नाम. सो यस, जैसा कि आपने सुना कि ये खातून हैं, इन्होंने खुद ही यूके गई, वहाँ पे एनएचएस में काम करती हैं, और फिर शादी इसलिए की क्योंकि अम्मी बहुत तंग कर रही थी, तो अम्मी ना तंग करें तो इसलिए शादी कर ली. नाउ दैट्स नॉट अ वाइज वे, बट लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट इन योर शूज, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि रोज़ की कॉन्स्टेंट बिकरिंग ऑन द फोन या बददुआएं वाले वॉइस नोट. आई नो हाउ मॉम कैन बी. So yeah, you probably want that off her back. But at the same time, जिससे शादी हो रही है, and especially when he was in your access, he was in the UK, you need to meet and speak more and more. Oh, speaking of that, Eid pe, so mostly I'm not around in Pakistan. Obviously, I'm with my family, but this time I was here. And I had to go places. और वहाँ बैठ के मैं जो सुन रहा था, I swear to God, man, like, जिस तरह की बातें और आउटडेटेड ख्यालात मुझे सुनने को मिल रहे थे ना, आई वाज लाइक, दिस पर्सन इज़ माय मदर. माय मॉम वाज सेइंग कि सो देयर्स बिन लाइक डिस्टेंट फैमिली में शादी से पहले ही शादी ख़त्म हो रही है. सो माय मॉम वाज लाइक, रोज़ बातें करते थे वो लोग, इसलिए हो रही है, नहीं करनी चाहिए. मैं नहीं भाई, क्या हो गया. इट्स गुड दैट शी फाउंड आउट. अच्छा, वो बंदा थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप का था. कहाँ गई, लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ गई, क्यों गई, किससे मिली, मुझे क्यों नहीं बताया, लोकेशन क्यों नहीं भेजी. मतलब साइको आदमी है, डिस्टेंट रिश्तेदार, व्हाटएवर जो भी है तो साइको. तो मैंने बोला साइको आदमी अच्छा है, लड़की की किस्मत थी, वो बच गई. नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता. अरे मैं क्या हो गया यार. सो लाइक या, एंड देन दे वर लाइक अदर थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड, एंड जिस तरह के ख्यालात डिस्कस हो रहे थे, आई एम लाइक, डूड, आई एम ग्लैड आई एम नॉट वन ऑफ दीज पीपल. आई एम फ्रॉम देम, बट ग्लैडली. वही ना, अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है. लर्निंग तो कभी कभी आपकी चॉइस नहीं होती ना. आप पैदा ऐसे घर में हुए हो जहाँ ये ख्यालात परवान चढ़ते हो, या आपको इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट में डाला गया हो, या ऐसे स्कूल्स में गए हों जहाँ पे आपके पास और चॉइस नहीं थी. दैट्स नॉट अ चॉइस दैट यू हैव, बट अनलर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारी ज़िंदगी थोड़ी देर से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें सब उतारना होता है जो चढ़ा हुआ होता है. एनीवे, सो यस, तो फिर जैसा कि आपने सुना, एक इन्फ्लुएंसर जो कि करबला गए थे फॉर हिज, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, नॉट चेहलम, चेहलम की वॉक होती है, हाँ चेहलम की जो वॉक होती है, यार व्हाट्स इट कॉल्ड, हाउ एम आई फॉरगेटिंग दिस, अरबाइन. अरबाइन मीन्स इन अरबिक 40वां दिन, अरबा 4, अरबाइन 40वां. सो जो करबला की शहादतें हैं उनका जो 40वां दिन होता है, तो उसमें वॉक होती है फ्रॉम नजफ़ टू करबला. सो यू बेसिकली डू द सेम वॉक एज दे डिड. तो उसमें मैंने इसको, खैर अरबाइन पे तो मैं नहीं गया था, बट आई हैव ट्रैवल्ड ऑन दैट सेम रोड. उसमें जगह जगह कैंप्स बने होते हैं, उनको मॉकअप कहते हैं, राइट. तो पाकिस्तानी मॉकअप होता है, इराकी होता है, ईरानी होता है, और वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ रेस्टिंग एरियाज होते हैं, पेट स्टॉप्स होते हैं, जहाँ पे पीपल वेलकम यू, दे गिव यू फूड, दे गिव यू कहवा, दे गिव यू ड्रिंक्स. वो आपके पैर भी दबाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका मानना है कि जो लोग अरबाइन की वॉक कर रहे हैं, तो ये हम इनके खादिम हैं. Dude, you're like super VIP. These are the things that I've heard from those who have done it. तो फिर फिर आप पूरी एक वॉक करते हो. आई डोंट नो कितने अरसे में लोग कवर करते हैं वो वॉक, बट इट्स लाइक अ गुड डिस्टेंस, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स गर्मी में होता है, इराक है भाई, गर्मी होती है वहाँ बहुत. तो मॉकअप में लोग रुकते रुकते जाते हैं, कहीं से चाय पी ली, कहीं से खाना खा लिया, कहीं लोग टांग दबाते हैं, कहीं लोग मसाज करते हैं, कहीं आप जो लोग हल्की वॉक करते हैं, ज़ाहिर है वो फिर दे स्टे ओवर नाइट. तो या, तो वो काफ़ी स्पिरिचुअल एक ज़रा रहता है सिलसिला. तो उन्हीं को देख के इन्होंने वो वॉक करनी थी, बट उस वॉक पे प्रिपेयर होने के लिए कमीनो डी सैंटियागो, नाउ अज्यूमिंग इट हैपेंस इन सैंटियागो विच इज़ चिले, तो शायद इन्होंने वो करनी थी एक वॉक, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. ज़ाहिर है आप पहले दिन तो मैराथन में से मुँह उठा के तो नहीं जाते, यू ऑब्वियसली हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. भूख लग रही है यार. तो फिर और फिर जैसे कि सिचुएशन रही, हस्बैंड जो हैं वो
ज़ोर ज़ोर से सुनते हैं स्कॉलर्स को। एंड फिर इनकी एक दोस्त थी जो कि क्वेयर थी, उनको घर बुला के खाने पे बुलाया और जलील कर दिया बकौल इनके, और उनके बकौल वो ज़ाहिर है उनकी तबलीग कर रहे थे, उनको राह रास्त पे लाना चाह रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इट पुट हर इन अ वेरी शेमफुल पोजीशन। सो नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर डिवोर्स। और उसमें यही लिखा है, अच्छा आपने जो एक बात लिखी ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जस्ट राइटिंग इट आउट हैज़ बिन गुड फॉर मी, कि अगर ईमेल देखी जाए ना देखी जाए ना, आई एनकरेज दिस। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, तो somebody had written to me because the case was loneliness. So somebody who is working in, not in marine biology, but like something related to that. So basically studying data of a certain area, और वहाँ की जो मरीन लाइफ है उनको, उनका इलाज हो रहा है ताकि वो सेहतमंद रहें, तो उनकी नस्लें सेहतमंद रहें, और फिर इंसान जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं वो भी सेहतमंद रहें। So she's doing that and she's done her PhD. So वो obviously was the case of loneliness because the whole Pakistani community around her is सास बहू नंद ने ये बोल दिया. So like, you know, when you've done your PhD, you're like, fuck that. I don't want to be part of this thing. So there was a case of loneliness, and she said it कि, you know, even writing this has been very cathartic. And of course it crossed my eye, and so like we spoke. तो मैं हमेशा encourage करता हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी नज़रों से ना भी गुजरे आपकी ईमेल या आपका मैसेज, बट एटलीस्ट डू राइट इट, राइटिंग इट डाउन रियली रियली हेल्प्स. सो येस, आई एम ग्लैड यू फेल्ट कैथार्टिक. बाकी सैयद मुजम्मिल भी बोल रहा होगा मुझे क्यों डाल दिया इसमें बीच में. एंड दीज आर द साइंस ऑफ एन इनसिक्योर मैन हु यूज़ रिलीजन टू बाउंड वेमेन और टू लाइक प्लेस, ऐसा बोलेंगे जी लिबरल आदमी हैं, ये हैं वो हैं, बट भाई आपकी अपनी एक पहचान है, और अगर आपके नहीं मिलते मिजाज तो ठीक है, इट्स फाइन. इफ़ यू थिंक यू कांट लिव विद अ पर्सन लाइक दैट, मगर इसमें देखें बेहतर यही है कि आप पहले ये चीज़ें कर लेना. वाई गो थ्रू द प्रोसेस एंड देन फाइंड आउट, एंड देन फिर वो ज़ाहिर है आप पे भी लेबल लगेगा एक डिवोर्सी का, विच ऑब्वियसली डैम्पन्स योर मार्केट वैल्यू. तो फिर पेन भी है ना, चले नहीं भी हो पेन तो है ना, इट्स पेनफुल. ज़ाहिर है when you're getting married आपकी aspirations होती हैं, you look at a person and you think of them as your other half for the rest of your life, and then you want to raise your family. आपके ख्वाब होते हैं, अब जब वो ख्वाब टूटते हैं तो कभी भी अच्छा नहीं लगता. breaking up is never a good feeling, and of course grievance हर कोई उससे डील नहीं कर सकता. देखिए, there are things that you learn with life. There are people on my Facebook जिनके फादर को या मदर को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए, बट एवरी नाउ एंड देन दे पोस्टिंग अबाउट देम. पहले मैं सोचता था कि यार अटेंशन सीकिंग है, बट देन एज आई ग्रू ओल्डर मुझे अंदाज़ा हुआ, और मैंने ज़ाहिर है अनलर्निंग हुई, कि यार हर बंदा डिफरेंटली ग्रीव करता है. सबके ग्रीविंग, कुछ लोग बहुत डीपली ग्रीव करते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते उस लॉस से, कुछ लोग वाकई बहुत अटैच्ड होते हैं यार अपने पेरेंट्स से. नॉट सेइंग दूसरे नहीं होते, बट लाइक कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो अल्लाह की मर्ज़ी जानते हैं, दुनिया का प्रोसेस समझते हैं, वो ज़रा स्टोइक टाइप के होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन माय मॉम गॉट कोविड, माय ब्रदर वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग. उसने उनका टेस्ट किया एंड इट वाज पॉजिटिव, एंड ही वाज अनेबल टू से कि ये पॉजिटिव है, एंड टिप 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 रो रहा था. तो मैंने उसके हाथ से वो लिया, वो जो टेस्टिंग टिप होती थी, किट होती थी, एंड आई सेड पॉजिटिव, एंड आई वाज लाइक, अच्छा दिस इज़ लाइक व्हेन जब वैक्सीन्स भी नहीं आई थी. So, and like there was bad news everywhere. As much as I love my mother, it didn't affect me because यार एक माइंड बना हुआ है, माइंड ये बना हुआ है कि यार ये ज़िंदगी का हिस्सा है. I will be losing people. So when I had turned 40, I told my wife this categorically कि the next 5 years of my life are the years of losses. I'm gonna lose a lot of people. और ये इंसान की ज़िंदगी में एक फेज़ आता है कि बड़े रैपिडली आप, क्योंकि वो एक जनरेशन होती है ना, आगे पीछे एक ही एज होती है, या कुछ लोगों को जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, तो फिर वो रैपिडली जा रहे होते हैं. आई लॉस्ट माई मामू लास्ट 2 years ago. लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई कज़न, ही वाज लाइक अ ब्रदर टू मी, तायजाद भाई, राइट, 1 साल की गैप में, राइट. एंड दोज आई वॉज वेरी क्लोज विद दोज पीपल, बट लाइक वो अडेप्टेबिलिटी है कि यार ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इट हैज़ टू हैपन. व्हेन आई सॉ माई मामू आई वाज लाइक ही इज़ नॉट गोना मेक इट. When I saw my cousin, जब पता चला कि बीमार हैं, तबीयत सही नहीं है, आके देख लो कि यू नो थोड़ा सा मामला ज़रा आगे पीछे, जब द सी वर्ड रिवील भी नहीं हुआ था,
I looked at my cousin, I was like, he's not with us this Eid. इस ईद के बारे में मैंने सोचा था, he's not gonna be with us. And within 4 months he passed away, last stage cancer. तो ये हर किसी के अंदर नहीं होती, राइट? कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रीव करते हैं. And when my cousin passed away, I had told this story, and he was lying dead, and I was like, yeah, it had to happen. अच्छा उसकी तकलीफ कम हुई, he was in a lot of pain. But when I thought about my sister, who was very close to him, because वो आगे पीछे एज की थे, then I cried because I was crying in relation to what he meant to my sister, what he meant to my brother. So वैसे I had accepted कि हाँ यार, it had to happen. But in relation to other people, I'm not sure if I'm making sense. Please tell me if you also thought that way about something. So yes, लोगों का grieving period different होता है. कुछ लोग नहीं निकल पाते उस grief, इसलिए ग्रीविंग थेरेपीज भी होती हैं, राइट? कुछ लोग कहते हैं ना मरने वाले के साथ मरना नहीं चाहिए, बट इट्स ईजियर सेड दैट डन. कुछ लोग नहीं निकल पाते यार उससे, एंड एक्सेप्ट करना चाहिए. सो कमिंग टू योर प्रॉब्लम, सॉरी, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई पहले अच्छी तरह जान लें, पहचान लें. नहीं मिजाज मिलते तो वही, अब आप अगर आपके अंदर ये मैराथन रनिंग थी, कहीं ना कहीं तो होगी ना. यू क्लियरली इफ़ यू गोइंग टू मैराथन दिस एंड दैट, तो ये चीज़ें बताएं कि दिस इज़ व्हाट आई डू एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट. अभी मुझे एक ईमेल आई थी कि वो श्योर जिम नहीं जाने देता अकेला, और कहता 3 लेयर पहन के जाओ. मतलब लाइक वो कह रही मैं पहले ही वजन लूज़ करना है, 3 लेयर पहना के मुझे जिम ले जाता है, और कहता है मैं ही हूँगा तो जाऊँगा, कि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग यू नॉट गोइंग टू द जिम. तो भाई ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेना कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी हैं आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में, ये मेरे शौक हैं, दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक टू डू. या फिर अगर आपका हाँ वो कपड़ों का ही मामला हो, पहले डिस्कस कर लें. कुछ लोग एडमेंट होते हैं कि नहीं आपने पर्दा करना है. आई कैन, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट अगर आपने नहीं करना तो ये चीज़ें पहले कम्युनिकेट होनी चाहिए. और दूसरी पार्टी को भी ये नहीं कि हाँ अभी मैं हाँ कर देता हूँ, शादी होने दो फिर समझाऊंगा, ये ना करें. ये फिर धोखाधड़ी है, राइट? कि आपने किसी को जालसाजी में वक्ती तौर पे उनकी बात मान ली, अगले ने आप पे यकीन किया, आपके साथ रिश्ता अज़दवाज में वो शामिल हुए, अब आप कह रहे हो कि जी अब मैं डंडा चलाऊंगा. दैट्स नॉट द नाइसेस्ट थिंग टू डू. एंड फिर अगर वो आप एक अच्छे काम के लिए करें तो फिर वो धोखाधड़ी, अच्छा काम की अगर शुरुआत ही धोखाधड़ी से हुई है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, राइट? सो खैर, आई एम ग्लैड यू ऑप्टेड आउट, बिकॉज क्लियरली अगर आपके मिजाज नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, तो ऐसी जगह पे ज़िंदगी गुजारना बहुत लंबा फेज़ है. वैसे तो वक्त बड़ी जल्दी कटता है, लेकिन नहीं भी कटता अगर बुरे इंसान नहीं, गलत इंसान के साथ अगर आप हैं. बुराई अच्छाई इज सब्जेक्टिव. अपनी नज़र में वो अच्छा है और अपनी नज़र में वो सही काम कर रहा है, किसी और की नज़र में शायद वो जुल्म कर रहा है. अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. बट गलत इंसान जो आपके साथ मैचिंग नहीं है, लेगो सेट नहीं ज्वाइन हो रहा, तो वो मुश्किल हो जाता है. फिर वो टाइम कटता नहीं है और फिर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है. आप तो फिर वैसे भी रनिंग वाली खातून है, आपकी तो ज़िंदगी माशाल्लाह और लंबी होगी, क्योंकि आप तो एक्सरसाइज भी कर रही हैं. सो वाई गो थ्रू ऑल दैट पेन? सो प्लीज़ ख़वातीन, अपने पेरेंट्स से जान छुड़ाने के लिए दूसरी कैद में ना जाए कि यार ये तंग कर रहे हैं तो मैं इनसे तंग नहीं होना चाह रही, तो अब मैं यहाँ चली जाती हूँ ताकि ये मुझे तंग करे. ये क्या लिविंग हुई भाई? एक पिंजरे से निकल के दूसरे पिंजरे में छलांग मारना. प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर क्वेश्चन एंड आंसर. मैं मर्दों से भी ये कह रहा हूँ, प्लीज़ पहले ही हर चीज़ से, हर एस्पेक्ट से सवालात कर लें. औलाद में क्या प्रेफरेंस है, कितनी औलाद होनी चाहिए, व्हाट्स द रिकमेंडेड नंबर यू हैव इन माइंड, बेटियों को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बेटों को लेके क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, बच्चे किस तरह होने चाहिए, बच्चों को किस तरह पालना है. भाई यू नीड, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट. जब आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं और सब सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे घर ले रहा हूँ या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसके ओवरहेड्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह. इसी तरह दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन योर लाइफ. सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग द ड्यू डिलिजेंस, तो फिर आपने आज नहीं तो कल सफ़र करना है. तो बेहतर है आज पहले ही जान के थोड़ा सा सफ़र कर लें और साइड पे हो जाए, रादर देन यू गेट इनटू अ सिचुएशन एंड देन फिर वो फ्रिक्शन बड़ी होती है. और जहाँ फ्रिक्शन होती है चीज़ें अच्छी नहीं होती, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, यू वेक अप नेक्स्ट टू समवन यू डोंट इवन लाइक. दैट्स नॉट अ वे टू लिव. सो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड आई विश यू वेल. ख्याल रखिएगा एंड गुड लक टू योर ट्रिप इन करबला
if you do it. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.